بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ بغداد شہر میں سلیمان نام کا ایک امیر تاجر رہا کرتا تھا، جس کی دکان بغداد شہر کے مرکزی بازار میں تھی، جہاں وہ کپڑے، مسالے اور قیمتی چیزوں کی تجارت کیا کرتا تھا۔ سلیمان کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا حارث اور چھوٹا بیٹا منصور۔ ایک رات جب سلیمان اپنے گھر کی چھت پر لیٹا ہوا ستاروں کو دیکھ رہا تھا تو اسے اچانک اپنی موت کا احساس ہو گیا۔ یہ بیمار نہیں تھا، بس ایک عجیب سا احساس تھا جو اس کے سینے میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا اور کہا، میرے پیارے بیٹو، میرا وقت قریب آ گیا ہے اور میری سب سے قیمتی چیزیں تم دونوں ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارا کوئی جھگڑا نہ ہو۔ حارث کافی سمجھدار تھا، اس نے اپنے باپ کو تسلی دیتے ہوئے کہا، ابا جان، آپ فکر نہ کریں، ہم دونوں بھائی پیار اور محبت سے رہیں گے۔ منصور صرف سادہ لو لڑکا تھا، وہ صرف خاموشی کے ساتھ سر ہلاتا رہا۔ سلیمان نے اپنے تکیے کے نیچے سے ایک کاغذ نکالا اور کہا، میں نے ہر چیز کی یہاں پر ایک فہرست بنائی ہے، جہاں پر ہماری دکان ہے، ہمارا گھر ہے اور دریا کے پاس والی زمین ہے، اور ایک ہمارا پرانا گدھا بھی جو 25 سالوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور ہاں 50 دینار نقد رقم بھی ہے۔ حارث نے یہ سنا تو من ہی من میں سوچنے لگا کہ وہ بوڑھا کھچر تو کسی کام کا نہیں رہا، نہ وہ بوجھ اٹھا سکتا ہے اور نہ ہی ہل چلا سکتا ہے۔ پھر سلیمان نے آگے کہا کہ میں نے ہر چیز برابر تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے۔ حارث، تم بڑے ہو، تمہیں دکان ملے گی۔ منصور، تم یہ گھر رکھ لو اور دریا کے قریب والی زمین کو فروخت کر کے اس کی رقم تم آدھی آدھی کر لینا۔ دونوں بیٹوں نے سر ہلا کر اسے تسلیم کیا۔ پھر سلیمان نے ایک عجیب بات کہی، اور سنو، وہ جو گدھا ہے اس کا فیصلہ تم دونوں خود کرو گے کہ اسے کون رکھے گا۔ جب تم دونوں اس بات کا فیصلہ کر لو کہ اسے کون رکھے گا تو اس وقت میری روح کو سکون ملے گا۔ حارث نے جب یہ سنا تو اپنے باپ سے بولا، ابا جان، اس بوڑھے گدھے کے لیے کیا جھگڑا، اسے جو چاہے رکھ لے۔ پھر سلیمان بولا، نہیں بیٹا، اس گدھے کا حصہ ہی تمہارے لیے آزمائش ہے۔ جس دن تم دونوں بھائی محبت سے اور بغیر کسی لالچ کے اس کا فیصلہ کر لو گے، اس دن میرا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ کہنے کے بعد سلیمان کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو گئیں، اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد جب تقسیم کا وقت قریب آیا، دونوں بھائیوں نے بیٹھ کر وہ فہرست دیکھی۔ زمین، دکان، رقم، سب کچھ اس کے اندر صاف تھا۔ لیکن جب گدھے کی باری آئی تو دونوں بھائی ایک دوسرے کے منہ کی طرف دیکھنے لگے۔ بڑا بھائی بولا کہ منصور، تم اسے رکھ لو۔ منصور بولا، نہیں بھائی، آپ مجھ سے بڑے ہیں، اس لیے اسے آپ رکھو۔ منصور نے جھلا کر کہا، نہیں، یہ بیمار گدھا ہے، اسے میں نہیں رکھوں گا، اس کے چارے پانی کا بھی تم سوچو اور اسے اپنے پاس رکھ لو۔ اس طرح سے دونوں کے درمیان بحث ہو گئی۔ چھوٹے بھائی نے کہا کہ میں بھی اسے نہیں رکھوں گا۔ ان کے درمیان اتنی بحث بڑھ گئی کہ یہ فیصلہ قاضی کے پاس پہنچ گیا۔ وہ دونوں بھائی شہر کے مشہور قاضی کے پاس چلے گئے، جس قاضی کا نام یحییٰ بن خالد تھا۔ وہ قاضی بہت نیک اور انصاف پسند قاضی تھے۔ وہ ایک بزرگ، سفید داڑھی والے، تیک نظر انسان تھے جو فوراً کسی بھی مسئلے کی تہہ تک پہنچ جاتے تھے۔ دونوں بھائی قاضی کے پاس پہنچے، وہاں پر اور بھی کئی مقدمات شامل تھے۔ دونوں بھائی قاضی کے پاس پہنچے، وہاں پر اور بھی لوگ جمع تھے جو اپنے مقدمات پیش کر رہے تھے۔ ایک آدمی اپنے پڑوسی پر بکری چرانے کا الزام لگا رہا تھا اور ایک آدمی اپنی بیوی سے طلاق چاہ رہا تھا۔ جب ان کی باری آئی تو قاضی نے ان سے پوچھا، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ حارث نے بتایا، حضور، ہمارے والد صاحب فوت ہو گئے، انہوں نے ہمیں سب کچھ دیا، لیکن یہ بوڑھا گدھا بچ گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ گدھا میرے چھوٹے بھائی منصور کو ملے۔ منصور نے فوراً کہا، نہیں حضور، میرا بھائی بڑا ہے، اسے میرا بڑا بھائی رکھے گا۔ قاضی نے یہ سنا تو حیرت کے ساتھ بولا، تم دونوں ایسی بات پر جھگڑ رہے ہو جسے کوئی نہیں چاہتا۔ پھر منصور نے بتایا، وہ ایک بیمار اور بوڑھا گدھا ہے۔ پھر قاضی نے کہا کہ تم ایسا کرو، اس گدھے کو بازار میں لے جاؤ اور فروخت کر دو، اس کے تمہیں جو بھی پیسے ملیں تم اسے آپس میں تقسیم کر لو۔ جب یہ بات سنی تو دونوں بھائی خوش ہو گئے، یہ تو بہترین طریقہ تھا۔ جب وہ بازار میں لے کر گئے تو انہیں ایک عجیب منظر نظر آیا۔ بازار پر رونق تھا، جہاں پر گدھے، کھچر اور گھوڑے بکتے تھے۔ دونوں بھائیوں نے اپنا گدھا لیا اور وہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایک خریدار قریب آیا، اس نے گدھے کے دانت دیکھے اور منہ بنا کر کھڑا ہو گیا۔ دوسرے نے اس کی ٹانگیں ٹٹولی اور کہا، یہ تو اتنا کمزور ہے کہ ایک بوری بھی نہیں اٹھا سکتا۔ تیسرا آدمی ہنس کر بولا، تم اسے بیچ رہے ہو یا اسے دفن کروانے لائے ہو؟ آخر پورا دن گزر گیا لیکن اسے کسی نے نہیں خریدا۔ جب شام ہو گئی تو ایک بوڑھا آدمی ان کے قریب آیا جو گدھے کی کھال کا سوداگر تھا۔ وہ قریب آیا اور بولا، میں اس گدھے کا 1 دینار دوں گا، وہ بھی مرنے کے بعد اس کی کھال کے لیے۔ حارث نے غصے سے کہا، وہ بھی 1 دینار، کم سے کم 5 دینار تو ہونے چاہیے۔ وہ سوداگر ہنسا اور وہاں سے چلا گیا۔ دونوں بھائی مایوس ہو کر گھر واپس لوٹے۔ گدھا اب دونوں کے لیے بوجھ بن چکا تھا، نہ کوئی خریدار اور نہ کوئی حل۔ جب وہ رات کو سو رہے تھے تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ اچانک منصور کی آنکھ کھلی، اسے محسوس ہوا جیسے کوئی آواز آئی ہے۔ وہ اٹھ کر جب صحن میں آیا تو اس نے دیکھا کہ گدھا چاندنی میں کھڑا ہوا تھا اور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ پھر گدھے نے بالکل انسانی آواز میں اسے کہا، منصور بیٹا،
तुम्हें मालूम है कि तुम्हारे अब्बा ने मुझे क्यों छोड़ा? ये सुनकर मंसूर घबरा गया, लेकिन गधा बोला, डरो नहीं, मैं कोई जिन नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बूढ़ा जानवर हूँ जिसने तुम्हारे बाप की 25 साल तक खिदमत की। लेकिन आज मैं बोलूँगा क्योंकि तुम्हारा सबक सीखना जरूरी है। मंसूर आहिस्ता से बोला, क्या क्या सबक? फिर गधा बोला, तुम दोनों भाई एक बेकार चीज पर झगड़ रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि ये एक बोझ है। क्या तुमने कभी सोचा है कि बोझ क्या होता है? मंसूर खामोश रहा। गधा फिर बोला, बोझ वही है जिसे तुम बोझ समझते हो और नेमत वही है जिसे तुम नेमत समझते हो। तुम्हारे अब्बा ने मुझे इसीलिए छोड़ा ताकि तुम समझो कि जिम्मेदारी से कैसे मोहब्बत की जाती है। गधे ने इतना कहा और खामोश हो गया और मंसूर को ऐसे लगा जैसे उसने कोई ख्वाब देखा हो। जब सुबह हुई तो उसने अपना ख्वाब अपने भाई को सुनाना चाहा, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसका भाई उसे पागल समझेगा। गधे का बोलना ये तो कोई ख्वाब ही होगा। लेकिन जब उसने गधे की तरफ देखा तो उसकी आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे वो उसे कुछ कहना चाहता हो। फिर दोनों भाई नाश्ता करने के लिए बैठे। हारिस रोटी तोड़ते हुए बोला, मंसूर, हमें इस गधे का कुछ करना चाहिए। हम आज फिर बाजार चलेंगे, शायद कोई मिले जो इसके 2 दिनार दे। मंसूर ने देखा और आहिस्ता से बोला, भाई हम इसे रख नहीं सकते। हारिस ने हैरान होकर देखा और पूछा, ये तो काम भी नहीं करता और हर रोज 1 दिनार का इसका चारा भी लाना होगा। फिर मंसूर बोला, लेकिन अब्बा ने कहा था कि इसे तकसीम कर लेना, शायद उनकी बात में कोई हिकमत हो। हारिस हंस कर बोला, हिकमत? अरे अब्बा जान बूढ़े हो गए थे और उन्हें इस जानवर से सिर्फ मोहब्बत थी। मंसूर खामोश हो गया और सोचने लगा कि शायद वो कुछ ज्यादा सोच रहा है। फिर दोनों भाइयों ने गधे को नहलाया और बाजार ले गए और उसकी पीठ पर एक चादर बिछा दी ताकि वो कुछ बेहतर लगे। लेकिन बाजार में फिर वही माजरा हुआ। लोग देखते, हंसते और आगे बढ़ जाते। एक नौजवान ताजर ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, अगर ये गधा बोलता होता तो इसे खरीदने के बारे में सोचता। ये सुनकर मंसूर का दिल धक से रह गया। उसे रात वाली बात याद आ गई। दूसरी तरफ हारिस एक चालाक सौदागर से बात कर रहा था। वो गधों के गोश्त का सौदागर था। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस गधे के 2 दिनार दूंगा और इस गधे का गोश्त जंगली कुत्तों को खिला दूंगा। मंसूर ने सोचा कि 2 दिनार काफी हैं। वो अपने भाई हारिस की तरफ बढ़ा और बोला, भाई ये आदमी 2 दिनार दे रहा है। मंसूर ने फौरन कहा, नहीं। हारिस ने पूछा, क्यों नहीं? मंसूर की आंखों में आंसू आ गए। भाई ये गधा अब्बा जान के साथ 25 साल रहा। इसने उनका सामान उठाया, सवारी की और कभी शिकायत नहीं की, और अब हम इसे मारकर अपना हिस्सा लेंगे। ये सुनकर हारिस को गुस्सा आ गया, तो तुम अपना हिस्सा रख लो, लेकिन मैं अपना आधा हिस्सा बेच रहा हूँ। यह सुनकर वो गोश्त का सौदागर हंसा और बोला, भाई आधा गधा कौन बेचता है? दोनों भाई आपस में लड़ने झगड़ने लगे। बाजार में लोग जमा हो गए और कहने लगे, ये कैसे भाई हैं जो एक बीमार गधे के लिए लड़ रहे हैं? किसी ने कहा कि इन दोनों भाइयों को शर्म नहीं आती, बाप को मरे हुए अभी 40 दिन भी नहीं हुए और ये लड़ रहे हैं। हाँ। फिर एक आदमी ने कहा कि काजी के पास चलो। वो दोनों भाई फिर काजी के पास पहुंच गए। काजी ने उन दोनों को देखा तो फिर हैरत से पूछा, तुम दोनों फिर आ गए? हारिस बोला, हजूर मेरा भाई गधा बेचने से इनकार कर रहा है। मंसूर बोला, हजूर ये गधा मेरे बाप की निशानी है। काजी ने एक गहरी सांस ली और वो समझ गया कि ये मामला सिर्फ एक गधे का नहीं बल्कि 2 भाइयों की सोच का फर्क है। यह सुनकर काजी ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी और सही हल बताता हूँ। तुम ये बताओ कि यह गधा तुम्हें क्या फायदा दे सकता है? जिसने सही जवाब दिया ये गधा उसी का होगा। हारिस ने फौरन कहा, हजूर मैं इसे बेचकर 1 दिनार हासिल कर सकता हूँ। लेकिन मंसूर खामोश रहा। फिर कुछ सोचते हुए बोला, हजूर मैं इससे कोई फायदा नहीं लेना चाहता, मैं सिर्फ इसके आखिरी दिन इसे इज्जत के साथ गुजारते हुए देखना चाहता हूँ। यह सुनकर काजी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। काजी ने कहा, बहुत खूब, लेकिन मंसूर अगर ये गधा तुम्हारे पास रहा तो तुम्हें इसका चारा पानी सब कुछ करना पड़ेगा। मंसूर ने सर झुकाकर कहा, जी हजूर। काजी ने फैसला सुनाया तो यह गधा मंसूर का हुआ। और हारिस, तो तुम इस गधे की रकम के बराबर अपने भाई को कीमत दो, यानी 1 दिनार। हारिस खुश हो गया। उसे लगा कि उसने 1 दिनार बचा लिया, क्योंकि ना अब उसे देखभाल करनी पड़ेगी और ना चारे का खर्चा। लेकिन काजी ने एक शर्त लगाई कि हाँ, तुम दोनों हर महीने मेरे पास आओगे और बताओगे कि यह गधा कैसा है और तुम्हारा आपस में ताल्लुक कैसा है। दोनों भाई खुश हो गए और गधे को अपने घर ले आए। इस रात मंसूर ने गधे को नया चारा दिया, इसकी पीठ साफ की और इसके पास बैठ गया। उसने आहिस्ता से कहा, तुमने कल रात मुझसे बात की थी या वो सिर्फ महज ख्वाब था? गधा खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक थी। दूसरी तरफ हारिस सोच रहा था कि उसने 1 दिनार खर्च करके उस बोझ से छुटकारा पा लिया। अब वो अपनी तजारत में तवज्जो दे सकता है। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन जब वो अपनी दुकान पर गया तो उसका एक बहुत बड़ा गाहक सौदागर उससे नाराज था। वो गुस्से में बोला, हारिस तुमने मुझे जो रेशम दिया था वो नकली निकला। मैंने जब उसे दूसरे शहर में बेचा तो उसे सब ने पकड़ लिया। अब या तो तुम मुझे मेरे पैसे वापस करो या मैं काजी के पास शिकायत करूंगा। हारिस के पैरों तले से जमीन निकल गई।
हारिस परेशान होकर बोला, मैंने तो वो खुद किसी ताजर से खरीदा था, अब मुझे क्या पता था कि वो नकली है। लेकिन सौदागर गुस्से में बोला, मुझे कुछ नहीं पता, या तो 50 दिनार वापस करो या अदालत में मिलते हैं। हारिस के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने घबरा कर कहा, मुझे कुछ वक़्त दो। सौदागर वहाँ से चला गया। हारिस परेशान हो गया, अगर ये बात फैल गई तो उसकी तजारत खराब हो जाएगी। वो परेशान हाल घर वापस लौट आया। मंसूर ने उसकी हालत देखी तो उससे पूछा कि भाई क्या हुआ। हारिस ने सारा वाक़या सुनाया। मंसूर आहिस्ता से बोला, भाई मेरे पास तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम इस गधे को बेच दें। तुम इस गधे को बेचना चाहते हो? हारिस ने हैरान होकर पूछा, लेकिन तुमने कहा था कि ये तो अब्बा जान की अमानत है। मंसूर खामोशी से बोला, अब्बा जान की अमानत तो तुम हो मेरे भाई, यह गधा तो सिर्फ एक आजमाइश है। ये बात सुनकर हारिस की आंखों में पहली बार शर्मिंदगी के आंसू आए। उसने मंसूर से कहा, नहीं मंसूर, मैं तुम्हें गधा नहीं बेचने दूंगा, मैं अपनी मुश्किल को खुद हल करूंगा। लेकिन मंसूर बोला, भाई हम दोनों मिलकर इस मुश्किल का हल निकालेंगे। अगले दिन हारिस ने अपनी दुकान का सारा सामान गिना, कुछ कपड़े कुछ मसाले, लेकिन 50 दिनार की रकम जमा करना मुश्किल था। मंसूर ने कहा कि भाई क्या हम इस गधे को किसी काम पर लगा सकते हैं? हारिस ने हैरान होकर कहा कि यह बूढ़ा गधा क्या काम करेगा? मंसूर सोचते हुए बोला, सुना है शहर के करीब ही एक कुआं है जहाँ पर गधे पानी खींचने का काम करते हैं। राहट घुमाने वाला गधा मर गया है। हारिस बोला, लेकिन हमारा गधा बहुत कमज़ोर है। फिर मंसूर बोला, कोशिश तो करके देखें। दोनों भाई गधे को लेकर कुएं के पास पहुंचे। वहाँ एक बूढ़ा माली रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। वो एक बड़े बाग की देखभाल करता था जो शहर के एक बड़े आदमी का था। बूढ़े आदमी ने गधे को देखा तो मुंह बनाकर कहा, यह गधा तो खुद चलने से कासिर लगता है। मंसूर ने आजिज़ी से कहा कि चचा सिर्फ एक मौका दें, हम आपसे मुआवजा नहीं लेंगे, बस आजमाना चाहते हैं। बूढ़े आदमी को भी सख्त ज़रूरत थी क्योंकि बाग के पौधे सूखने लगे थे। उसने कहा, चलो ठीक है, एक दिन के लिए रख लेता हूँ। फिर दोनों भाइयों ने गधे को एक राहट से बांधा। ये एक बड़ा चरखा था जिसे घुमाकर कुएं से पानी निकाला जाता था। फिर जब गधे को चलाने की बारी आई तो वो हिला तक नहीं। हारिस ने मायूस होकर कहा, देखो मैंने कहा था कि ये किसी काम का नहीं। फिर मंसूर ने गधे के कान में आहिस्ता से कहा कि बाबा अब तुम्हारी बारी है, दिखा दो कि तुम बेकार नहीं हो। और फिर अजीब बात ये हुई कि गधे ने आहिस्ता आहिस्ता चलना शुरू कर दिया। राहट घूमने लगा और आहिस्ता आहिस्ता पानी बहता हुआ नालियों में चलने लगा। जब बूढ़े माली ने यह देखा तो वो हैरान रह गया, ये तो कमाल हो गया। और फिर इसी तरह से गधा आहिस्ता आहिस्ता सारा दिन चलता रहा। शाम तक बाग के सारे पौधों को पानी मिल गया। शाम को बूढ़े इब्राहिम ने खुश होकर कहा, बेटो ये गधा भले ही बूढ़ा है लेकिन हिम्मत वाला है, मैं तुम्हें दिन में आधा दिनार दूंगा अगर तुम ये काम करते रहो। दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। आधा दिनार यानी 15 दिन में 7 दिनार। दोनों भाइयों ने फौरन हाँ कह दी। अगले दिन से ये मामूल बन गया कि मंसूर हर रोज गधे को वहाँ पर ले आता और सारा दिन कुएं से पानी निकालता और हारिस अपनी दुकान को चलाने लगा और इस तरह से कुछ रकम जमा होने लगी। लेकिन एक अजीब बात ये हुई, जो गधा पहले सुस्त और कमज़ोर नजर आता था अब वो तंदुरुस्त और चाको चौबंद नजर आने लगा, जैसे उसे काम के मिल जाने से खुशी हो रही हो। एक दिन हारिस ने मंसूर से कहा, भाई तुमने देखा कि यह गधा कुछ पहले से बेहतर हो रहा है। मंसूर ने खुश होकर कहा, भाई जब किसी को ज़रूरत महसूस होती है तो वो जिंदा हो जाती है। फिर एक दिन बाग का मालिक आया जो बहुत अमीर था। वो बाग को देखकर खुश हुआ क्योंकि बाग के पौधे हरे भरे थे। उसने बूढ़े माली से कहा, इब्राहिम तुमने कमाल कर दी, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। लेकिन बूढ़े माली ने सच्चाई बताई कि मालिक ये कमाल मेरा नहीं बल्कि 2 भाइयों और उनके गधे का है। जब बाग के मालिक ने उस गधे को देखा तो वो गुस्से में आ गया और चिल्लाकर बोला, ये गधा तो मेरे बाप का है और तकरीबन 20 साल पहले ये मेरे बाप का गधा चोरी हो गया था। ये वही शक्ल है और इसके कान पर यह निशान देखो। मंसूर ने जब कान पर देखा तो वाकई ही एक छोटा सा निशान था। लेकिन मंसूर ने कहा, जनाब यह गधा हमारे बाप का था, उन्होंने 25 साल तक इसे पाला। बाग के मालिक को गुस्सा आ गया। वो गुस्से में बोला, तुम्हारे वालिद ने यह गधा चोरी किया होगा। यह सुनकर हारिस का खून खोलने लगा। वो गुस्से में बोला, ज़बान को ज़रा संभाल कर। जब मामला बिगड़ता हुआ देखा तो बूढ़े माली ने कहा कि यह मुकदमा तुम काजी के पास ले जाओ। फिर वो दोनों भाई बाग के मालिक के साथ काजी की अदालत में पहुंच गए। काजी ने जब उनको देखा तो काजी मुस्कुराकर बोला, तुम भाई फिर आ गए, अब क्या मसला है? मंसूर ने सारा वाकया काजी को बताया और बाग के मालिक ने भी अपना मसला बताया। काजी ने बाग के मालिक हमजा से कहा, हमजा तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह गधा तुम्हारे बाप का है? हमजा ने बताया कि इसके कान पर यह निशान है, मेरे बाप ने बताया था कि यह गधा बहुत ताकतवर है। फिर काजी ने मंसूर की तरफ देखा और पूछा, मंसूर तुम्हारे पास क्या सबूत है? मंसूर बोला, हजूर मेरे बाप ने इस गधे को 25 सालों से पाला और पूरा मोहल्ला जानता है कि यह गधा मेरे बाप का था। फिर काजी ने कहा, हो सकता है तुम्हारे बाप ने इस गधे को कहीं से खरीदा हो या चोरी किया हो। मंसूर का दिल बैठ गया क्योंकि वाकई ही उसे नहीं मालूम था
کہ उसके अब्बा जान के पास ये गधा कहाँ से आया था। हारिस बोला, हजूर हमारे अब्बा जान कभी चोरी नहीं कर सकते थे। काजी बोला, जानता हूँ कि तुम्हारे वालिद सुलेमान एक नेक आदमी थे, लेकिन अदालत को सबूत चाहिए, जज्बात नहीं। फिर काजी ने एक अजीब फैसला किया कि मैं इस गधे को 3 दिन के लिए हमजा के हवाले करता हूँ। अगर यह गधा वहाँ पर खुश रहा और खाने पीने लगा तो ये हमजा का होगा। अगर ये गधा बीमार हो गया और इसने खाना पीना छोड़ दिया तो ये तुम्हारा होगा। ये सुनकर दोनों भाई तो परेशान हो गए, लेकिन हमजा खुश हुआ। उसने सोचा कि वो गधे को अच्छा खाना देगा और वो खुश हो जाएगा। लेकिन मंसूर का दिल बैठ गया। उसे लगा कि गधा जरूर अच्छे खाने की तरफ चला जाएगा। काजी ने कहा, 3 दिन के बाद आना। मंसूर और हारिस मायूस होकर घर वापस लौटे। उस रात मंसूर ने गधे को ख्वाब में देखा। गधा कह रहा था, परेशान ना हो, वफादारी की कीमत सोने से ज्यादा है। सुबह होते ही मंसूर ने यह ख्वाब अपने भाई को बताया, लेकिन हारिस बोला, भाई ये तो एक ख्वाब है। लेकिन मंसूर के दिल में एक अजीब सी आस थी। हमजा गधे को अपने शानदार अस्तबल में ले गया। उसके सामने ताज़ा पानी रखा, ताज़ा घास डाला, यहाँ तक कि गुड़ मिला हुआ चारा भी रखा और खुश होकर गधे से कहा, देखो मियाँ गधे, यहाँ तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम्हें उन मुफलिस भाइयों के पास नहीं मिलता था। तुम अच्छा चारा खाओ और आराम करो। 3 दिन के बाद तुम मेरे हो जाओगे। लेकिन कमाल की बात यह हुई कि गधे ने चारे की तरफ देखा तक नहीं। उस रात हमजा सो गया। हमजा ने सोचा कि शायद गधा थका हुआ है। जब सुबह उसके पास आया तो उसने देखा कि चारा वैसे का वैसा पड़ा हुआ है। वो परेशान हो गया। उसने अपने मुलाजिम से कहा कि इसे ताज़ा चारा दो। गधे के सामने नया चारा लाया गया, लेकिन उसने कुछ भी नहीं खाया। फिर दूसरे दिन हमजा ने खुद गधे को चारा खिलाना चाहा। उसने अपने हाथ में गुड़ मिला हुआ चारा उठाया और गधे के करीब किया, लेकिन गधे ने कुछ नहीं खाया। हमजा को गुस्सा आ गया, ये कैसा जिद्दी जानवर है। दूसरी तरफ हारिस और मंसूर परेशान और बेचैन थे। मंसूर ने अपने भाई से कई बार कहा कि भाई देख कर आते हैं कि हमारा गधा कैसा है, लेकिन हारिस ने मना किया। काजी ने कहा था कि 3 दिन तक हमें सब्र करना होगा। तीसरे दिन की सुबह हमजा घबरा गया, क्योंकि गधे ने कुछ भी नहीं खाया था। उसकी आंखें अंदर धंस गई थी और वो खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था। ये तो मर जाएगा, अगर ये मर गया तो काजी मुझे मुजरिम ठहराएंगे। उसने फौरन गधे को काजी की तरफ रवाना किया। जब 3 दिन पूरे हो गए तो हारिस और मंसूर भी काजी के पास पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनका गधा बिल्कुल कमजोर हो गया है। मंसूर दौड़कर गधे के पास गया। तुम्हें क्या हो गया? गधे की आंखों में पहली बार चमक आई। काजी ने सारी सूरत हाल देखी और हमजा से पूछा, क्या हुआ? हमजा शर्मिंदा होकर बोला, हजूर मैंने इसे बेहतरीन खाना दिया, लेकिन इसने कुछ नहीं खाया। फिर काजी ने मंसूर से कहा कि अब तुम इसे खाना खिलाओ। मंसूर ने अपने थैले में से सूखी घास निकाली और गधे के आगे की। गधा वो सूखी घास खाने लगा। पूरा दरबार हैरान रह गया। फिर काजी ने कहा कि गधे ने खुद फैसला कर दिया कि यह गधा हमजा का नहीं बल्कि मंसूर का है। हमजा बोला, हजूर लेकिन मेरे वालिद का गधा। काजी ने हाथ उठा दिया और कहा, हमजा हो सकता है यह गधा वही हो, तुम्हारे वालिद का, लेकिन 20 साल से इसने मंसूर के बाप के पास रहकर खिदमत की, उनके साथ वफादारी निभाई, लेकिन अब यह उनके खानदान का हिस्सा बन चुका है। हमजा शर्मिंदा हुआ और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। लेकिन फिर काजी ने कहा, हमजा अगर तुम ये साबित कर दो कि यह गधा वाकई तुम्हारे वालिद का था, तो मैं इन दोनों भाइयों को हुक्म दूंगा कि ये तुम्हें गधे की कीमत अदा कर दें, जो उस वक़्त थी, यानी 10 दीनार। हारिस और मंसूर के चेहरे उतर गए। 10 दीनार, उनके पास तो सिर्फ 7 दीनार थे। लेकिन फिर हमजा ने कहा, नहीं हजूर, मुझे यह गधा नहीं चाहिए और ना ही इसकी कीमत। सब हैरान रह गए। फिर हमजा बोला, मैंने 3 दिन में यह देख लिया कि मोहब्बत और वफादारी को कीमत से नहीं खरीदा जा सकता। यह गधा अपने मालिकों से इतनी मोहब्बत करता है कि इनके बगैर खाना भी नहीं खाता। यह गधा इन दोनों भाइयों का हक है। काजी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। बहुत खूब हमजा, तुमने एक बड़ा सबक सीखा। फिर हमजा ने मंसूर की तरफ देखा और कहा, भाई मैं तुमसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने बिला वजह तुम्हारे वालिद साहब पर इल्ज़ाम लगाया। मंसूर ने कहा, कोई बात नहीं। फिर हमजा ने एक और बात कही, लेकिन मैं एक बात चाहता हूँ। सब ने तवज्जो लगाई। हमजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह गधा हफ्ते में 2 बार मेरे बाग में काम करे। मैं तुम्हें 1 दीनार दूंगा, आधे की बजाय। इसके खाने का खर्चा और इसकी देखभाल का खर्चा सब मैं दूंगा। हारिस और मंसूर दोनों भाई खुश हो गए। काजी ने कहा, यह बेहतरीन हल है। मामला तय हो गया। तीनों ने हाथ मिलाए और दरबार से बाहर आ गए। बाहर आते ही हारिस ने मंसूर से कहा कि भाई तुम ठीक कहते थे, यह गधा वाकई अब्बा जान की अमानत था। मंसूर ने कहा, लेकिन अब यह हमारी जिम्मेदारी है। उस रात जब मंसूर ने गधे को खाना खिलाया तो उसने आहिस्ता से कहा, तुमने 3 दिन तक खाना नहीं खाया, लेकिन क्यों? गधा खामोश रहा, लेकिन ऐसा लगता था जैसे वो समझ रहा हो। मंसूर ने कहा, शायद तुमने हमें सबक सिखाया कि वफा की कीमत खाने से ज्यादा है। अगले दिन से नई रूटीन शुरू हो गई। मंसूर हफ्ते में 2 दिन हमजा के बाग में गधे को ले जाता
बकिया दिन हारिस की दुकान से सामान लाने और ले जाने का काम करता। अब गधा चाको चौबंद नजर आने लगा, जैसे उसे जिंदगी का मकसद मिल गया हो। एक दिन हारिस ने देखा कि गधा अपनी पीठ पर सामान लदे हुए चल रहा है और वह बिल्कुल भी थका हुआ नहीं लग रहा। उसने मंसूर से कहा कि ये अजीब बात है, ये गधा जवान होता जा रहा है। मंसूर ने कहा कि भाई, जब किसी को अपनी कदर का एहसास हो तो वो जवान हो जाता है। एक महीना गुजर गया। मंसूर और हारिस को काजी की कही हुई बात याद आई कि हर महीने आकर बताना कि गधा कैसा है और दोनों भाइयों का आपस में ताल्लुक कैसा है। दोनों भाई गधे को लेकर काजी की अदालत में पहुंच गए। काजी ने जब दोनों भाइयों को देखा तो मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे बेटो, सुनाओ तुम्हारा क्या हाल है। दोनों भाइयों ने अपना हाल बताया और कहा, अल्लाह का शुक्र है, गधा भी पहले से बेहतर है। मंसूर ने बताया, और अब हम दोनों भाई मिलकर काम कर रहे हैं। काजी ने गधे को देखा, वो पहले से बेहतर लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी खाल चमक रही थी। काजी ने कहा, बहुत खूब, लेकिन मैं तफसील चाहता हूँ, क्या तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा हुआ? हारिस ने शर्मिंदगी से कहा, जी हजूर, लेकिन छोटा सा। काजी ने कहा, जरा बताओ। फिर हारिस ने बताया, दरअसल मंसूर हफ्ते में 2 दिन हमजा के बाग में ले जाता है और 2 दिनार कमाता है और बाकी के 5 दिन मेरी दुकान पर सामान ढोने का काम करता है। मैंने भी सोचा कि मैं मंसूर को कुछ दूं, लेकिन मंसूर ने कहा, मैंने लेने से इनकार कर दिया। काजी ने पूछा, लेकिन क्यों? मंसूर ने कहा कि गधा हम दोनों का है और वो जो कमाता है वो भी हम दोनों का है। फिर हारिस ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मेरा भाई अपनी मेहनत का हिस्सा ले। फिर काजी बोला, दोनों भाई बहुत अच्छा सोच रहे हैं, लेकिन मेरा मशवरा ये है कि गधे की कमाई में से आधा हिस्सा तुम गधे पर खर्च करो और आधा हिस्सा आपस में बांट लो। दोनों भाइयों को ये बात बहुत पसंद आई। लेकिन काजी ने फिर पूछा, अब मुझे बताओ कि तुम दोनों भाइयों में से ज्यादा खुश कौन है? हारिस ने कहा, मैं खुश हूँ हुजूर, मेरी दुकान अब अच्छी चल रही है और इस गधे की वजह से मेरा सामान आने और ले जाने में आसानी हो गई। मंसूर ने कहा, मैं भी खुश हूँ, मुझे इस गधे की देखभाल करने में सुकून मिलता है। काजी ने कहा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। दोनों भाइयों ने तवज्जो से सुना कि अगले महीने जब तुम आओ तो मुझे बताना कि तुमने इस गधे से क्या सीखा। दोनों भाई हैरान होकर सोचने लगे कि ये गधा हमें क्या सिखाएगा। काजी ने कहा कि अब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें यह गधा क्यों दिया था। दोनों भाई वापस आ गए। रास्ते में हारिस ने मंसूर से कहा कि भाई, काजी की बात का क्या मतलब था? मंसूर बोला, शायद अगले हफ्ते तक हमें पता चल जाएगा। अगले हफ्ते एक वाक़या ने दोनों भाइयों की आंखें खोल दी। हारिस की दुकान पर एक नया ग्राहक आया था जो दूर दराज के इलाके से था, जिसे बड़ी मकदार में मसाले चाहिए थे। मैं तुम्हें एक बड़ा ऑर्डर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें सारा सामान मेरी गाड़ी तक पहुंचाना होगा जो शहर के दूसरे हिस्से पे है। हारिस ने हिसाब लगाते हुए सोचा कि 50 दिनार का ऑर्डर बहुत बड़ा था। हारिस ने गधे पर सामान लादा और उसे लेकर चलने लगा। रास्ता पथरीला और ऊंचा नीचा था। गधा आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, लेकिन रुका नहीं। बीच रास्ते में हारिस को प्यास लगी। उसने सोचा कि किसी दुकान से पानी ले ले, लेकिन जब उसने अपनी जेब टटोली तो उसके पास एक पैसा भी नहीं था। सारे पैसे वो दुकान में छोड़ आया था। उसका हाल बुरा हो गया। भूख और प्यास से वो बेहाल हो रहा था। लेकिन फिर चलता हुआ गधा रास्ते में एक दरख्त के नीचे रुक गया। हारिस ने पूछा, क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? फिर हारिस समझ गया कि शायद वो उसे आराम करने के लिए कह रहा है। हारिस ने कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं आराम करूं? गधे ने सर हिलाया। शायद वो समझ रहा था। थोड़ी देर के बाद हारिस की तबीयत बेहतर हो गई। उसने गधे से कहा, तुमने मुझे बचा लिया, मैं सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहा था। इस दिन हारिस ने एक नया सबक सीखा कि लालच में अपनी सेहत को मत भूलो। कुछ दिन के बाद मंसूर के साथ भी एक अजीब वाक़या हुआ। वो हमजा के बाग में काम कर रहा था, कुएं से पानी निकाल रहा था। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पास आई। उस बूढ़ी औरत ने कहा, बेटा, मेरे घर में पानी खत्म हो गया है, क्या मैं यहाँ से थोड़ा सा पानी ले सकती हूँ? हमजा ने कहा, यह बाग मेरा नहीं है, मुझे इजाज़त लेनी होगी। बूढ़ी औरत मायूस हो गई। लेकिन उसी वक्त गधा तेज तेज चलने लगा और राहड़ को घुमाने लगा। पानी इतना तेज निकला कि नाली से बाहर बहने लगा। मंसूर ने गधे से कहा, अरे रुको, लेकिन गधा नहीं रुका। फिर बूढ़ी औरत ने उस बहते हुए पानी से अपना मटका भर लिया और वहाँ से चली गई। फिर मंसूर ने गधे को देखा, वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। फिर मंसूर ने सीखा कि इंसानियत कानूनों से बड़ी है। अगले महीने दोनों भाई काजी की अदालत में फिर पहुंचे। इस बार दोनों भाइयों के चेहरों पर अजीब सा सुकून था। गधा भी उनके साथ था, जो पहले से ज्यादा बेहतर और तंदुरुस्त लग रहा था। काजी ने दोनों को देखकर पहचान लिया और मुस्कुराकर कहा, आओ मेरे बेटो, बताओ कि इस गधे से तुमने क्या सीखा? हारिस आगे बढ़ा और कहने लगा, हजूर, मैंने सीखा कि जिंदगी में पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं, सेहत, सुकून और रिश्तों की कदर करना भी जरूरी है। फिर मंसूर ने कहा, मैंने सीखा कि कानून जरूरी है, लेकिन इंसान को इंसानियत और रहम दिली कभी नहीं भूलनी चाहिए। काजी ने खुश होकर सर हिलाया, बहुत खूब, लेकिन एक और सवाल है। दोनों भाइयों ने तवज्जो की, क्या अब भी तुम दोनों में से इस गधे को कोई नहीं चाहता? दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ देखा
और फिर हारिस ने कहा, हजूर अब तो ये गधा हमारे खानदान का हिस्सा है, मैं इसे अपना भाई समझता हूँ। और मंसूर ने कहा, मैं इसे अपना उस्ताद समझता हूँ। काजी ने खुश होकर एक कहकहा लगाया और कहा, तुम्हारे वालिद यही चाहते थे। हारिस ने पूछा, लेकिन हजूर आपने हर महीने हमें क्यों बुलाया? काजी ने कहा, इसलिए ताकि तुम्हें एहसास रहे कि तुम्हारे साथ कोई है। जब कोई जानता है कि कोई उन पर नजर रख रहा है तो वो संभल कर रहते हैं। फिर दोनों भाइयों को अपने बाप की मोहब्बत का अंदाजा हुआ। फिर काजी ने कहा, जिस चीज़ को तुम बेकार समझते हो वो बेकार हो जाती है, और जिस चीज़ को तुम कीमती समझते हो वो कीमती बन जाती है। ये कानून इंसानों पर भी लागू होता है। मंसूर ने कहा, यानी हम अगर किसी इंसान को बेकार समझें, काजी ने बात को पूरा किया, तो वो वाकई बेकार हो जाता है, लेकिन अगर तुम उसकी इज्जत करो, उसे मौका दो, तो वो काम का बन जाता है। प्यारे दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ज़िंदगी में जो चीज़ें हमें बेकार लगती हैं, कभी कभार वही चीज़ें हमें सबसे ज़्यादा सबक सिखाती हैं। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये सच्ची कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।